Do we know about stack? What is stack? Tell me. What is stack? Stack क्या है, कौन बताएगा? हित, स्टैक क्या है? अमन, अमन व्हाट इज स्टैक? स्टैक किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है? ओम, आर यू प्रेसिडेंट? यस सर। स्टैक किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है? उसमें पुश और पॉप में वो आते हैं ना। बिल्कुल, पुश और वो पॉप में आता है। तो पुश करते हैं तो कब, कहाँ पे पुश करते हैं? वो एंट्री होती है तब। एंट्री होती कहाँ पे होती है स्टैक में? नीचे से। ऊपर से, टॉप पर। हाँ सॉरी, ऊपर से, टॉप से। टॉप पर मतलब जो लास्ट एलिमेंट आया होता है उसके बाद, ठीक है। और एग्जिट कहाँ से होती है? बॉटम। दैट मीन्स अगेन फ्रॉम द टॉप। यस। Stack is which kind of structure? Last in, first out. Yes? Correct? Stack कोड हुआ था सबसे या अभी पेंडिंग है? स्टैक कोड हो गया क्या आप लोगों का? यस और नो? पेंडिंग, अभय का पेंडिंग है। व्हाट अबाउट अदर्स? दर्श इज आल्सो पेंडिंग। नील का बाकी है, बाकी सबका पेंडिंग है। स्टार्ट कोडिंग स्टैक, ओके। यूज एरे फॉर कोडिंग स्टैक फर्स्ट। तो स्टैक कोड करने के लिए आपको क्या चाहिए? There will be an insert operation which is push, and there is another operation which is pop. So your push is basically insert and pop is delete, okay. And the insertion and deletion take place at the single end, okay, which is your top, and top is the element which is entered last, right? जो सबसे लास्ट में आया था उसके बाद एलिमेंट एंटर होगा, और कौन सा एलिमेंट निकलेगा? जो सबसे लास्ट में आया था। इसका एग्जीक्यूशन वापस देखना है कोड का तुम्हें? यस और नो? यस सर। ओके, पहले कोड समझने की कोशिश करो जो तुम्हें कोड करना है। फर्स्ट विल गिव द यूजर द चॉइसेस. व्हाट आर द चॉइसेस? whether he want to insert an element in the stack, that is your, whether he wants to perform the push operation. Did we started the recording or not? Okay, recording is चालू है। okay. Then second is delete an element from the stack, which is pop operation. Third is display, that means display the elements of the stack at the current position. And fourth is your exit operation, okay. And we have applied a switch case based on the 4 options available to us.
Then comes your insert function. If you have taken the size of stack as 10, okay, if the element in the stack are present currently are 10, and if you want to insert the 11th element in the stack, okay, the stack is full, what should be the message? अगर स्टैक में 10 एलिमेंट पहले से हैं और स्टैक की मैक्स साइज 10 है, ओके, और हम 11th एलिमेंट एंटर करना चाहेंगे तो मैसेज क्या आएगा? ओवरफ्लो, ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो सर। अगर 10 नहीं है, 10 से कम है, तो क्या करना है? हमें एलिमेंट इंसर्ट करना है। और n एक वेरिएबल है जिसमें हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेव कर रहे हैं, उसमें एक इंक्रीमेंट कर देना है। ठीक है, एलिमेंट हम कहाँ इंसर्ट करेंगे? लास्ट पोजीशन पे। और एलिमेंट डिलीट कहां से होगा? लास्ट पोजीशन से, करेक्ट? यस सर। ओके, so in case of delete operation what will happen? डिलीट ऑपरेशन में अगर एलिमेंट 0 है तो क्या वैल्यू आनी चाहिए आपकी? अगर स्टैक एम्प्टी है तो क्या आप एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं? नो सर। दैट मीन्स अंडरफ्लो। यस सर। Okay, else what we have to do? We have to pop out the element which entered last, right? And your display operation is basically displaying the content of your stack, right? So if you run this code, you'll see what, because of the switch case, we'll get multiple choices. So if we like insert an element, okay, so we entered element like 12. Then we again insert the element, we entered 13. Then we again enter the element, we inserted 14. So what should be the display showing to you currently? 12, 13, 14, which is currently your stack, right? 12 was entered first, then 13 was entered, then 14 was entered. Correct? Are you following? Yes or no? In chat box? Okay. Got it. Is the screen visible now? Yeah, the output screen is visible now? Yes, यस sir. सर। Okay. So what we did, we'll again see. We first press insert button, then we enter 12, right? Then we again press insert button, and then we enter 13, then we again press the insert button, then we entered 14. So what all values we have inserted? 12, 13, 14. So when we displayed the output, it was like 12, 13, 14. These are the elements which are currently present in the stack. Yes? Yes sir. Okay. So now Om is going to tell what will happen if you press delete. What will happen? Which element will be deleted? Om, कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा? क्या सर, क्वेश्चन रिपीट करो। कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा अगर हम 2 प्रेस करेंगे तो? 13। 2 प्रेस करेंगे तो 13 डिलीट होगा? नहीं 14। क्योंकि सबसे लास्ट में क्या आया था? 14। 14। तो सबसे पहले क्या डिलीट होगा? 14। हसन 12 नहीं होगा, 14 होगा, क्योंकि 14 सबसे लास्ट में आया था। 14। हाँ सर। ठीक है, यस। okay. So if we display the stack again, what is the output? Is it a stack or not? It is deleting 12. Yes. यस।
What should have been deleted? 14? Yes or no? Yes, sir. What should be deleted? 14. But this program is deleting what? 12. 12. Is it correct or not? No. 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 Okay. So you have this code with you. Just click a screenshot of this code. Okay. Or I simply copy this code on your WhatsApp group. And you have to modify it so that it works correctly for stack. Okay. देखो डिस्प्ले फंक्शन सही है, डिस्प्ले फंक्शन सही से काम कर रहा है ना, Yes, हाँ sir. सर. इंसर्ट फंक्शन सही से काम कर रहा है, Yes, sir. तुम्हें कौन सा ऑपरेशन सही करना है? Delete. Delete. डिलीट. तो ये कोड मैं तुम्हारे ग्रुप पे भेज रहा हूं, ठीक है? और तुम्हें क्या करना है, कौन सा ऑपरेशन सही करना है? डिलीट. ओके. डिलीट वाला. Received on WhatsApp group? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. So copy the code, understand the logic, okay, and try to modify the code for which operation? Delete operation, right? And you will be required to share your screen now, okay? So just a second, I'll coming back to you in 2 minutes, okay? Now you all can share your screen with me, okay? Share your screen with me. अपनी स्क्रीन शेयर करो सब. सर स्क्रीन वन एट अ टाइम ही शेयर होगी. नहीं, सब एक साथ शेयर कर सकते हो, ट्राई करो. यस, अबे की शेयर हो गई है. सर स्क्रीन शेयरिंग वन एट अ टाइम ही होगा. Bhavik has also shared. Aman has Bhavik has only shared the screen. Rest of you haven't. Start screen sharing. Aman, Bhavik and Abhay have started sharing screen.
अब आई एम ऑडिबल? यस सर। तो जो आपने वो पार्ट लिखा हुआ है ना n इक्वल टू 0 अंडर फ्लो, वो वाला पार्ट करेक्ट है, उसके नीचे एल्स पार्ट में गड़बड़ है। वो एल्स पार्ट की गड़बड़ देखो क्या है। कौन सा सर? ये डिलीट फंक्शन था, इसमें जो अंडर फ्लो वाला पार्ट है ना वो सही लिखा हुआ है, ठीक है। n इक्वल टू 0 हो तो अंडर फ्लो हो जाना चाहिए। और ये जो एल्स पार्ट है ना, इनका कोड आप सबको मॉडिफाई करना है। क्लियर है? हाँ सर, वही कर रहा हूँ। हाँ, देख लिया वो मैंने। स्क्रीन शेयरिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है आप सबकी? स्क्रीन शेयर क्यों नहीं कर पा रहे? भाविक की स्टार्ट हो गई। स्क्रीन आपकी शेयर ही रहनी चाहिए ताकि मेरे को पता चलते रहे आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही तो आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगी। क्लियर है? कोई बात नहीं, आप लोग मोबाइल से ज्वाइन करो ये, या स्क्रीन विजिबल करो मेरे को, नहीं तो मेरे को कैसे पता चलेगा आप कोड क्या कर रहे हो। हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लो अपने लैपटॉप से और लैपटॉप से ज्वाइन कर लो। भाविक, नील, अभय, 3 स्क्रीन विजिबल है करंटली। मीत ने भी शुरू करी है। हाँ, स्क्रीन शेयर करो सब। जयदीप की भी विजिबल हो गई है। ओम लैपटॉप से कनेक्ट नहीं कर पाएगा? सर नेट नहीं आ रहा है, डिस्कनेक्ट होता है सर। ओके, ठीक है, तो जब मैं बोलूं तब स्क्रीन विजिबल कर देना, ठीक है। हाँ ओके सर। हाँ मन, और नीचे आ, नीचे आता जा। डिलीट वाले में जो एल्स पार्ट है इसमें गड़बड़ है। अब ये एनालाइज कर इसमें क्या गड़बड़ हो रही है और उस गड़बड़ को हम कैसे दूर करेंगे, ठीक है। यस यस। नो इश्यूज हर्ष, मैं बोल दूंगा आपको, अगर विजिबल करना होगा तो मैं बोल दूंगा। ओके, यू कैरी ऑन विद योर वर्क।
हित क्या कर रहा है? हित, आर यू देयर? यस सर। तो कुछ मॉडिफिकेशन करो, ये स्क्रीन खोल के क्यों बैठे हो? चेंज करो, इसमें कोड को स्टडी करो पहले। एक काम करो, पहले इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन जो है ना, इंसर्ट ऑपरेशन और डिस्प्ले ऑपरेशन को स्टडी करो, फिर डिलीट करने पे आना, ठीक है? पहले इंसर्ट ऑपरेशन समझो, फिर डिलीट ऑपरेशन समझो। मीत कहाँ अटका हुआ है? हाँ, अंडरफ्लो की तो जरूरत पड़ेगी ना, अगर स्टैक एम्प्टी है तो कैसे बताओगे कि खाली है स्टैक? हाँ मीत, सही जगह ढूंढ रहे हो। भाविक, डिलीट करने के बाद जो है ना, डिस्प्ले करोगे तब पता चलेगा सही काम हो रहा है या नहीं हो रहा। जब आप डिलीट प्रेस करते हो फिर डिस्प्ले प्रेस करो, ताकि आपको आइडिया लगे क्या डिलीट हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है? एंटर चॉइस 3, तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2 में आपके अंडरफ्लो आ रहा है, दैट मींस स्टैक एम्प्टी है। आ रहा है समझ में भाविक? टू टू प्रेस किया था तो क्या है? अंडरफ्लो, दैट मींस योर स्टैक इज करंटली एम्प्टी। तो आप अगर डिस्प्ले करोगे एम्प्टी स्टैक को तो कुछ डिस्प्ले होगा क्या? नहीं सर, इसलिए ओवरफ्लो आ गया, यस। अंडरफ्लो आ गया। हाँ, अंडरफ्लो आ गया था इसलिए डिस्प्ले कुछ भी नहीं हुआ। यस सर। सर क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन आपने जो ये है करने कि को? जो अपना जो डिलीट ऑपरेशन है वो सही काम नहीं कर रहा है स्टैक का। स्टैक में क्या होना चाहिए? जो सबसे जो लास्ट में आया है फर्स्ट, वो लास्ट डिलीट होना चाहिए। वो लास्ट में आया है, जो सबसे पहले डिलीट होना चाहिए। हाँ। तो जो लास्ट में आया है वो डिलीट नहीं हो रहा, फर्स्ट वाला डिलीट हो रहा है। इस कोड को रन करोगे तो जो यस सबसे सर, पहले यस आया सर, था वो डिलीट हो रहा है। तो स्टैक यस में मॉडिफाई करने के लिए क्या होगा? इस ऑपरेशन को हमें चेंज करना पड़ेगा कि लास्ट में आया हुआ डिलीट हो। यस। बस इतना सा काम करना है। यस सर।
डन सर, हो गया। हो गया? हाँ, किसका हुआ? भाविक 33 भाविक। भाविक। ओके, जस्ट हाँ, जस्ट execute once again from the starting. 5 Okay, 6 just a second. First display. Currently it is 5 6 7 5 6. 5 6, yes. Okay, which should be deleted first? 6 will be deleted. Okay, press 2. Okay, what changes you made to your code? Actually less than and greater than, there is a one small change. What change you did? I Will greater than n okay, minus 1. just tell me, will your program will enter this loop anytime? क्या सर? इस लूप में ये प्रोग्राम कभी एंटर होगा? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपके बात मैं क्या ये कहना पूछ रहा चाहते हैं। हूँ कि जो फॉर लूप है इसमें प्रोग्राम कभी ये एंटर होगा क्या? हम्म, हम्म, इस लूप में कभी प्रोग्राम एंटर होगा क्या? क्यों नहीं होगा? नहीं होगा तो क्या इस फॉर लूप की जरूरत है? हाँ सर, आखिरी वाला एलिमेंट डिलीट करने के लिए ये फॉर लूप तो चाहिए ना। ये नहीं चाहिए ना, वो जो हम डिलीट करने के लिए कहाँ यूज कर रहे हैं, हम कहाँ डिलीट कर रहे हैं बताओ? एक काम करो, इस फॉर लूप को हटा दो, पूरी फॉर लूप को ब्रेसेस तक हटा दो, नीचे वाले बस। नहीं, n-1 नहीं, n-, को रहने दो, फॉर लूप तो वहीं तक है ना, वो ब्रैकेट भी हटेगा वो वाला। हाँ, बस हटा दो। I need to stop a program. हाँ, ओके, अब नाउ रन अगेन। They are 5 6 and 7 या, and delete यस, and display. यस, Yes sir, हो गया। ओके। हाँ हो गया सर। बिकॉज एरे में गार्बेज वैल्यू तो सेव रहती है, हमने क्या सेव कर लिया, कहां तक वैलिड एलिमेंट है। ओके, नाउ insert 8 also. Press 1, then press 8. 8 Now now display, then delete again. Yes. 8 will be deleted. Yes sir. Got it? Yes sir. Now understand the logic clearly behind the scene. Understand all the functions and explain. जयदीप, हम क्या कर रहे हैं?
मीत लाइन नंबर 50 पे आना, सॉरी 49 पे। हाँ 49 से डिलीट करना शुरू कर, मैं बता रहा हूं वहां तक। और नीचे आ, 49 से 52 तक डिलीट कर दे। 50 पे n माइनस माइनस कर। अब रन करके कोड देखो और मेरे को समझा ऐसे क्यों आ रहा है। Insert is to input element, displays how to show the inserted elements, right? Delete is to remove the last element number entered in this. Yes. Yes, Diana, what's the question? Is there a question in this? सर रिपीट करना, इंटरनेट कनेक्शन चला गया। हाँ अब रन करके देख मीत। यस सर। And explain me the reason behind the correct output. सर आपका आवाज लैग हो रहा है। जो करेक्ट आउटपुट आएगा अब उसका रीजन एक्सप्लेन करना है तेरे को मेरे को। सर कोड तो समझ लो पहले। हाँ कोड समझ ले आराम से। सर हाँ सर यहाँ पे आप डू व्हाइल लूप जो यूज कर रहे हैं हाँ अबे इसमें बोल रहा while ना। में। हाँ हाँ सर। अबे अबे बोलो। सर इसमें अब हमने c इज नॉट इक्वल टू 4 ऐसा क्यों दिया है? c किसके लिए वो समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। सी हमारा है आपके कैरेक्टर के लिए, कैरेक्टर को स्विच कर रहे हैं ना। हाँ अब ओके। सी जब 4 हो जाएगा तो एग्जिट होना चाहिए। तो जब तक हाँ कैरेक्टर, जब तक हम 4 प्रेस नहीं करें तब तक इस लूप से एग्जिट ना हो। गॉट इट? यस सर। उसके लिए सी है। क्लियर है अबे? यस सर। ठीक है ना। अगर 4 पे एग्जिट करना है ना हमें, जब तक 4 प्रेस नहीं करेगा तब तक एग्जिट नहीं होगा। ओके हाँ सर। ठीक है। भाविक एक्सप्लेन करोगे? सर मैं समझ रहा हूँ अभी। ओके
जयदीप ने 11 एंटर किया, 12 एंटर किया, डिस्प्ले हो गया 11 12। ठीक है जयदीप, डिलीट करके बताना मेरे को क्या डिलीट हो रहा है। मन का प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। डोंट वरी जयदीप, हो जाएगा। माधव का डिस्प्ले में 1 2 3 आ रहा है, फिर एंटर चॉइस में डिलीट करा माधव ने, नीचे स्क्रॉल करना माधव, फिर डिस्प्ले करा तो 1 2 यानी 3 डिलीट हुआ, फिर चॉइस डिलीट करी तो 3 आया, फिर 1 आया। ठीक है तो हो गया माधव कोड। यस सर, मैं कोड समझ रहा हूँ अभी। ओके गुड, कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग। ओके सर। हाँ बस एक्सप्लेन करोगे कोड। श्योर सर। करो एक्सप्लेन। सर जब हम मतलब साथ में एग्जीक्यूट और वो दोनों समझो तो चलेगा ना। हाँ चलेगा। बिल्ड एंड तो सर जब हम आउटपुट एक्सप्लेन नहीं करना, कोड एक्सप्लेन करना है। हाँ हाँ कोड ही करूंगा हाँ बिल्कुल आउटपुट के बिल्कुल, साथ। आराम से। तो सर जब हम कंपाइल करते हैं ना कोड तो हम यहाँ पे डू वाइल लूप यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग ये प्रिंट से होगा, तो उसके बाद वो स्कैन करेगा हमारे आउटपुट के लिए, मतलब हमारे इनपुट के लिए ओके कि यूजर को क्या चॉइस चाहिए। ओके अब हम जैसे कि फर्स्ट केस 1 लेते हैं, तो उसमें इंसर्ट का होगा, तो उसमें ओके। यहाँ पे वो 2 वैल्यू पास ऑन करेगा अबे एक हमारे। मिनट रुको, अबे एक मिनट रुको, अभी एक बार सबको समझाने एक साथ है ना, ठीक हाँ है। आप लोग अपनी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर कर अभय जो बात कर रहा है वो अभय की बात सुनने के लिए आओ ऑनलाइन। अभय की स्क्रीन देखो सब। सबको अभय की स्क्रीन दिख रही है? अगर दिख रही है तो यस मैसेज करो। यस सर। Yes, sir. It's visible. यस सर। Okay. Yes, it's visible now. So now Yes, Abhay sir. will Yes, be sir. explaining the entire code to us. Okay. Okay, Abhay, start from the beginning. ओके Here सर। three functions, वहीं से explain करना शुरू करो। तो हम यहाँ पे डू वाइल लूप यूज करें, वी आर यूजिंग द डू वाइल लूप। सो व्हेन वी स्टार्ट द एग्जीक्यूशन, द कंपाइलिंग ऑफ द कोड, it will run from the main method, of course, and once we start the loop, it will print the 4 lines, giving us the user a quick overview that what we can do with the code. Or after that we are using switch case to get the choice from the user whether we want to insert. So as we have printed above, that 1 is insert, 2 is delete, 3 is display, and 4 which is exit of the loop. So here when I is my terminal visible, sir?
Yes, your Yes. terminal is visible. Yes, yes. Yes. Okay, so when I add one, it will go into the insert function, which is a user defined function. So when we are passing here two values, one is our array and the other one is our number. The number is actually our index number for the array. So once we pass those two things, the first condition it will check if n is equal to 10. So when n is equal to 10, our stack will be full. So we need to display that no more numbers can be entered. So it will go with displaying overflow. And when it is not full, it will go into the else part. And it will actually take a value from the user, and it will increment the number of n, which is our, as I said, our index value. So when next time when we enter a number, so let's just say I'm entering 10 over here. Next time when I'm entering again insert, it will update the n value to 2. Sorry, 1, I mean, because n is equal to 0. Then from this step to this step, the n value was incremented to 1. So if we go into a of 1, our value will be 11. So then it will return the number of n, which is our index value, so that whenever let's just say we are going for delete, it will update the n value so that our n delete function can use the same value. And when we are doing n minus minus, it will reduce the number of index when we are deleting a number. Because array will always hold a garbage value. Yes, we cannot remove the garbage value at a position. So we just need to remember that the number saved are 5, and we can ignore that whatever the number at 6th position is, we need not to bother about that particular number. अब है, अब सेम चीज देखो गुजराती में समझानी है तेरे साथ वालों को. Is it possible Okay. for you? हाँ सर, yes sir. धीरे धीरे आराम से समझा दे. તો આપણે અહીંયા છે ને do while loop યુઝ કરી છે. તો do while loop છે ને do નો બેસિકલી એમાં કેવું હોય કે do while loop યુઝ કરતા હોય ત્યારે જે લૂપ નો કન્ટેન્ટ હોય ને એ એકવાર રન થશે અને પછી ઈ કન્ડિશન ચેક કરશે. તો પહેલે આપણે જ્યારે કોડ આપણે કમ્પાઇલ કરીને તો આપણે એટલું તો જોઈએ જ છે કે આપણી જે પ્રિન્ટ ની લાઈન છે ને આટલું ઈ ફર્સ્ટ એક્ઝિક્યુટ થાય જ, એટલે ઈ પાર્ટ એક્ઝિક્યુટ થશે. પછી હું ભલે ડાયરેક્ટ 4 દઈ દઉં તો એ ત્યારે કન્ડિશન ચેક કરશે અને ત્યારે એક્ઝિટ થશે. પણ હવે આપણે જેમ કે કાંઈ નંબર એન્ટર કરવો છે તો આપણે 1 દબાવી, તો અહીંયા આપણો જે સી ની વેલ્યુ છે ને ઈ 1 લેશે અને સ્વિચ કેસમાંથી ઈ આપણું કેસ એક્ઝિક્યુટ કરશે કે નંબર ઇક્વલ્સ ઇન્સર્ટ, ઈ આપણું કસ્ટમ યુઝર ડિફાઇન્ડ જે ફંક્શન છે ને એને કોલ કરશે. તેમાં આપણે બે આપણે વેલ્યુઝ પાસ કરી છે, વિચ ઇઝ એ એન્ડ નંબર. જે એ છે એ આપણું એરે છે અને નંબર છે એ આપણું એકચ્યુઅલ ઇન્ડેક્સ વેલ્યુ છે. તો ઇન્સર્ટ ફંક્શન જે છે ને એમાં પેલી એક કન્ડિશન ચેક આપણે થશે કે જો આપણો સ્ટેક ફૂલ તો નથી ને, તો એ વસ્તુ ચેક કરવા માટે આપણે છે ને n ડબલ ઇક્વલ ટુ 10 દઈ દઈશું. તો n જ્યારે 10 થઈ જશે ને એટલે આપણા ટોટલ એરેની જે સાઈઝ 10 થઈ જશે ને તો ઈ એરે આપણું જે સ્ટેક છે ને એ ઓવરફ્લો દેખાડશે. પણ જો નહીં હોય ને તો એ આપણે યુઝર પાસે જે વેલ્યુ છે ને એ સ્કેન કરાવડાવશે અને ઈ જે ઇન્ડેક્સ વેલ્યુ હોય છે ને એને ઇન્ક્રીમેન્ટ કરાવશે અને પછી ઈ વેલ્યુ જે છે ને એ રિટર્ન કરશે. કેમ કે ઈ આપણી જે ઇન્ડેક્સ વેલ્યુ છે ને એ કોમન વેલ્યુ છે જે બધાય ફંક્શનમાં યુઝ થવાની છે. હવે અહીંયા આપણે ડિલીટમાં જોશી તો પણ યુઝ થવાની છે, કેમ કે આપણે જે ઇન્ડેક્સ વેલ્યુ છે ને એનાથી આપણે ડાયરેક્ટ એલિમેન્ટ રિમૂવ કરાવીએ છીએ, કેમ કે આપણે લાસ્ટ એલિમેન્ટ ડિલીટ કરવાનો છે. જો આપણે લાસ્ટ એલિમેન્ટ ડિલીટ કરવો હોય તો આપણે ઇન્ડેક્સ જ કાઢી નાખીને તો એ વેલ્યુ પણ નીકળી જાય. એટલે તો અહીંયા આપણે ઇન્સર્ટ કરી છે, પછી બ્રેક છે, તો એ બ્રેક છે ને ખાલી સ્વિચ કેસને એક્ઝિટ કરવા માટે છે અને પાછું એ કન્ડિશન ચેક કરશે. અહીંયા બ્રેક થયો એટલે સ્વિચ કેસની બહાર આવ્યું અને વાઇલ કન્ડિશન જે આપણે આપ્યું સી ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 4, આપણે 4 નો આપ્યું હોય, આપણે 1 આપ્યું હતું કેમ કે આપણે ફર્સ્ટમાં જ્યારે અહીંયા 1 આપ્યું તો આપણે એન્ટર કરી શક્યા. હવે જ્યારે 4 આપીશ ને ત્યારે એક્ઝિટ થશે.
ને તારા લૂપ ત્યાં સુધી ફરતું રહેશે જ્યાં સુધી આપણે 4 નો આપી. ડન સર. डन. मेरे को Yes, लगता है sir. गुजराती में तूने ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया इंग्लिश से. डिटेल में एक्सप्लेन किया तूने गुजराती में. नहीं सर, दोनों में सेम चीज ही बोली है. ठीक है. ના ભાઈ ગુજરાતીમાં વધારે સમજાઈ ગયું. है ना, ज्यादा समझाया ना. યસ સર. कौन कौन बोलते हैं कि गुजराती में ज्यादा समझाया? एक यस लिखो चैट बॉक्स में. सर दोनों में सेम चीज ही समझाया है, बस अगर गुजराती अगर अबे बोल रहा है कि सेम चीज समझाया तो नो लिख दो. सर सर सेम गुजराती चीज गुजराती मदर टंग है, इसलिए बोलने में थोड़ी आसानी रहती है ना, तो इजीली समझा सकता हूँ, लेकिन सेम चीज ही समझाया है. ओके, दैट आई नो. समझ में ज्यादा है सर. समझ में ज्यादा समझाया आया. नहीं, समझ में ज्यादा आया. हाँ तो हमारा कोड हुआ स्टैक का पूरा. स्टैक का कोड पूरा हो जाएगा अब या नहीं होगा? स्टैक का कोड पूरा होगा या नहीं होगा? फटाफट बताओ. सर एक क्वेश्चन था. हाँ बिल्कुल. सर आपने जो कोड भेजा वो तो क्यू का हुआ ना? क्या आपने ये भेजा था, ये क्यू का कोड था? ये कौन सा कोड था तुम बताओ. अभी तो खुद ही बता. कि मेरे को तो क्यू का लगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. इसका एंट्री कहाँ हो रहा है? आगे फर्स्ट. एंट्री हो रहा है लास्ट में. और एग्जिट हाँ. कहाँ से हो रहा था? आगे से, फर्स्ट से. तो ये किसका कोड हुआ? यू. ठीक है, क्लियर है सबको? दिस इज द कोड ऑफ क्यू इन विच द एंट्री इज मेड एट वेयर? एंट्री इज मेड एट लास्ट पॉइंट. ओके, एंड एग्जिट इज मेड from where entry is made? फर्स्ट. Entry is made at last. Yes. क्यू में एंट्री कहाँ होती है? एंट्री लास्ट में. और एग्जिट Exit कहाँ से first. होती है? फर्स्ट. 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 So now we have learned which two codes? स्टैक एंड क्यू. Stack and queue क्लियर है? स्टैक एंड क्यू की फंक्शनिंग क्लियर है क्या? यस सर. दोनों के कोड? यस सर. दोनों के कोड भी क्लियर है? यस और नो? यस सर. तो तुम लोगों को मैंने क्यू का कोड दिया था स्टैक लिखकर, और तुम उसको स्टैक का कोड समझ रहे थे. ठीक है ना? हाँ सर. तो कितना सा फर्क है दोनों के कोड में? फॉर लूप डिलीट का. ऑपरेशन का. ठीक है ना, डिलीट ऑपरेशन का ही फर्क है, क्योंकि एंट्री तो दोनों में सेम जगह हो रही है, एग्जिट अलग जगह से हो रही है. ये क्यू का कोड था, ठीक है, इसलिए इंसर्ट डिलीट लिखा था. इंसर्ट यानी एनक्यू, डिलीट यानी डीक्यू, राइट? सर शेयरिंग बंद कर दूं? नहीं, अभी तो और कोड, बाकी सबकी शेयरिंग शुरू करवानी है, बाकी सब भी कोड करेंगे अभी. और ये दोनों काम हुए. क्यू स्टैक क्लियर है क्या? हाँ सर. ठीक है, तो अभी सब स्क्रीन शेयरिंग शुरू करो और क्यू और स्टैक पर मेरे को नोट्स बनाकर दो. सब अपने नोट्स बनाओ और मेरे को स्क्रीन पे विजिबल कराओ. नोट्स सर में क्या मतलब आएगा लिंक? मैं बता रहा हूँ. वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है. सबसे पहले आप क्यू डिफाइन करेंगे, क्यू क्या होती है, फिर उसको एक मैथमेटिकल एग्जांपल से समझाएंगे, ठीक है.
फिर उसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो मैथमेटिकल एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। करेक्ट? इतना समझ में आ रहा है तीनों चीज? सर मैथमेटिकल में आप मैथमेटिकल एग्जांपल addition- मतलब जैसे क्यू में नंबर ले लिए 3 4 5, तो इंसर्ट ऑपरेशन होगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है, जो बेसिकली आपके प्रोग्राम का आउटपुट है। मतलब वैल्यू कहाँ कहाँ कौन सी अपडेट हो रही है वो एक्सप्लेन हाँ करने का है हाँ, कि वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने इंडेक्स का है कि नंबर जो आउटपुट आ रहा है अपडेट हो वो रहा क्यों आ रहा है। है। ओके ठीक है, तो ये दो किसके सॉफ्ट कॉपी तैयार करनी है अभी? सर ऑनलाइन रेफरेंस यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ऑनलाइन रेफरेंस यूज कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें पढ़ना है आज लिंक लिस्ट क्या होती है। लिंक लिस्ट हमने पढ़ी थी ना पहले? लिंक लिस्ट याद है? अच्छा, पॉइंटर याद है क्या तुम लोगों को? हाँ पॉइंटर क्या होता है? एड्रेस लोकेशन स्टोर करता है ऑफ गिवन ठीक है, वेरिएबल। ओके, तो आज ये खत्म करो। ठीक है, ये खत्म हो जाए तो अगर टाइमली सबका खत्म हो जाता है तो वी विल स्टार्ट विद लिंक लिस्ट टुडे। ठीक है, और सर उस बाकी सबकी स्क्रीन सर बताओ कहाँ दिक्कत आ रही सर है। क्या करना है? सर क्या करना क्या है पहले अभी? ये दोनों कोड समझने, सबसे पहले स्टैक और क्यू के। ठीक है, यस सर, बाद में क्या करना है? बाद में स्टैक और क्यू के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज करते हुए। क्लियर है? यस सर। और प्रोग्राम में जो चीज समझ में नहीं आए वो पूछनी है। यदि पहली चीज स्टैक को जो अपन लिफो लिख रहे हैं वो तो है ही, बट स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी सही लिखा है, रीड मत कर भले ही, पर आराम से जहां से पढ़ रहा है आर उसको आराम से पढ़। ठीक है, पहले सबसे पहले प्रोग्राम समझ, पहले लिखना शुरू मत कर। सर जब प्रोग्राम समझ वो में आ जाए फिर हमें आना किस पे है? फिर नोट्स बनाने पे आना है। हाँ वे, सर जो सॉफ्ट कॉपी बना रहे उसमें स्टार्टिंग में कोड डालने का है। कोड बाद में आएगा। ओके सर। पहले तो कोड में मॉडिफिकेशन करके एक्सपेरिमेंट करके पूरा कोड एक बार और देख ले, कुछ डाउट रह रहा है तो। मीत पहले कोड समझ फिर लिखना स्टार्ट करना। जब कोड पूरा समझ में आए तभी शुरू करना, पहले करने का कोई फायदा नहीं है। जबरदस्ती लिखने का कोई सेंस नहीं है जब तक हमें कोड समझ में नहीं आए।
जब कोड समझ में आ जाए फिर शुरू कर देना, ठीक है। जो लोग अपने मोबाइल से कनेक्टेड है और लैपटॉप पे कोड कर रहे हैं उनको दिक्कत आए तो अपने स्क्रीनशॉट शेयर करो मेरे साथ। जहां प्रॉब्लम आ रही है उसको मार्क कर कर भेजना मेरे को, कहाँ दिक्कत आ रही है। हर्ष कहीं दिक्कत आ रही है? ओके देन कैरी ऑन। जहां दिक्कत आए वहां चैट बॉक्स में टाइप करना, जो भी दिक्कत आए। हाँ ओम, पहले तो सबसे पहले तेरे को स्टैक और क्यू का बारे में जो पता है वो देख, कोड वर्क कैसे हो रहा है, ठीक है। कोड का मीनिंग समझ में आए उसके बारे में डिटेल में जाना है। पहले कोड का मीनिंग समझना है, किस कोड में किस लाइन में क्या हो रहा है। जो चीज नहीं समझ में आए वो पूछनी है। जब पूरा कोड समझ में आ जाए तब डॉक्यूमेंटेशन पर जाना, तब तक कोई डॉक्यूमेंटेशन मत करो। पहले सिर्फ कोड समझो और जितनी दिक्कत आए उतनी दिक्कत पूछो, मैं यही हूं। ओके, आराम से कोड समझो, कोड क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। हित सबसे पहले कोड समझो, कोड में क्या हो रहा है, स्टैक का कोड क्या है, क्यू का कोड क्या है, वो कैसे वर्क कर रहा है। जब हमें कोड समझ में आ जाए तब हमें डॉक्यूमेंटेशन करना है, तब तक कुछ नहीं करना, सिर्फ कोड समझना है। और अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो एक बार माइक ऑन कर लो हित। डन सर, डन सर। ओके,
नील कोड हो रहा है? नील, आर यू प्रेजेंट? यस सर। कोड हो रहा है नील? सर वही देख रहा हूँ। ओके। हाँ अमन, एक बार अपनी स्क्रीन विजिबल है तुम्हारी? स्क्रीन विजिबल करो अमन, फिर मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। कोड खोलो अमन, फिर बताता हूँ सी वाला। देखो ऊपर हमने लिखा है प्रिंट, स्क्रीन पे डिस्प्ले किया, 1 पे इंसर्ट हो, 2 पे डिलीट हो, 3 पे डिस्प्ले हो और 4 पे एग्जिट हो। ठीक है, फिर यूजर से चॉइस मांगी है। तो इस ब्लॉक के बाहर कब आना चाहिए? जब यूजर 4 एंटर करे। करेक्ट? यस सर। है ना? तो अगर यूजर 1 करेगा तो इंसर्ट हो। ठीक है, फिर वापस यस सर। फिर वापस यूजर सी लेगा। जब तक सी की वैल्यू 4 नहीं हो जाती तब तक एग्जिट होना चाहिए क्या?
यस सर। तो जब जब तक कि C4 ना हो तब तक क्या होता रहेगा, डू वाइल लूप के अंदर चलता रहेगा। यस सर। तो हर बार जब लूप के अंदर जाएगा तो 1 2 3 4 पे इंसर्ट डिलीट डिस्प्ले एग्जिट प्रेस हो डिस्प्ले होंगे, और जब हम 4 एंटर कर देंगे तो कोड एग्जिट हो जाएगा। इसके लिए लिखा है हमने ये वाला कोड। अब इसमें मेरे को बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा। आगे ऐसे समझ में वो नहीं समझ में आ रहा था। ओके, जयदीप क्या समझ में नहीं आ रहा पूछो। जयदीप कोई दिक्कत आ रही है क्या? ओके, मृगांशी कोड हो रहा है। मृगांशी आर यू देयर? यस सर। कोई दिक्कत आ रही है बच्चा? नहीं, कोड कर रही हूँ अभी। ओके ओके, कोड करो फिर। गुड।
भाविक का डॉक्यूमेंट अच्छा बन रहा है। सर सर हाँ बोलो। डॉक्यूमेंटेशन में एग्जांपल देने के, रियल लाइफ एग्जांपल। हाँ
अबे कोड की फॉन्ट साइज कम कर सकता है चाहे तो, और लाइन स्पेसिंग भी कम कर दे कोड के बीच में। हाँ 10 कर दे या 8 कर दे, लाइन स्पेसिंग भी कम कर। ये जो वो होम पर जाना, चल ठीक है कर ले तू कर ले अगर तेरे को करना है तो। अब एक बार होम पर जाओ। अबे देखो जस्टिफाइड के बगल वाला पॉइंट देखो, जस्टिफाइड के राइट में क्या है, और राइट आओ और लेफ्ट जाओ। ये एक एरो दिख रहा है ना, हाँ इस पे क्लिक करो, 1.0 करो, ठीक है। रिमूव स्पेस आफ्टर द पैराग्राफ करो, हाँ क्लिक करो, किया सर। ओके डन। ठीक है, और साइज कम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या कर रहा है। कुनमीत एग्जांपल सारे अच्छे हैं। अभी कोड समझ में आ गया क्या? यस सर। ओके देन प्रोसीड, कीप ऑन गोइंग। वत्सल अपना क्या प्रोग्रेस है? यस सर, कोड कंप्लीट हो गया है और मैंने समझ भी लिया है। अभी मैं डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर रहा हूँ। ओके कोड में तो कोई इश्यू नहीं है। नो सर, दोनों समझ में आ गए, एल्गोरिदम भी। ओके डन। हर्ष सर मैंने डॉक्यूमेंट बनाया, शेयर करूं? भले ही कर दो शेयर। हर्ष अपना क्या प्रोग्रेस है? ओके सर। हर्ष आर यू देयर? सर मैंने आपको चैट में लिखा है। ओके 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 डन। कोड में कोई इश्यू है हर्ष? ओके कैरी ऑन हर्ष।
जय कितना किया? Jay, are you there? हाँ सर, ये यस सर। कितना क्या जय? अरे वो कोड कर रहा था, अभी खत्म हो रहा है। फिर वो पीपीटी बनाओ, पीपीटी ये वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना। वो बना लेना। कोड में दिक्कत आ रहा है कुछ? नहीं नहीं, हो गया अब। हो गया? हाँ ओके। रोल नंबर 3। Yes, sir. रोल नंबर 5। Yes, sir. रोल नंबर 7। Yes, sir. Yes, Eight. sir. रोल नंबर 8। Rowan is not present. Then roll number 12. Present, sir. 13. Present, sir. Bhargav is present, yes. Aman is present. Vivek 16. Present, sir. Vivek कोई issue कोई doubt? No, sir. 17. Present, sir. 10 हुआ कुछ? Yes, sir. कोई doubt है? No doubt, sir. Okay. 21. Yes, sir. Om is present. Faizan. 25. Faizan, are you there? Meet is present. Then Mayank is present. Mayank, are you active? Yes, sir. Okay. Hit. Hit, are you there? Yes, sir. Yes, sir. 31 Hit is there. नहीं सर मैं तो 07 हूँ. हाँ 07. Yes, sir. Yes. कहाँ गया हुआ था हित? क्या 31 का पता नहीं मेरे को. नहीं तो 7 पे 31 में. हाँ 31 प्रेजेंट या नहीं है? Yes, sir. 31. तो इतनी देर में क्यों बोला? 32 जे प्रेजेंट है. यस सर। 33 भाविक प्रेजेंट है. Yes, sir. Present. Diana is present. Then 37 Yes, Harsh. sir. Present. Harsh is Yes, present. sir. Present. Yes. Then 38 Yes. is Vatsal. Vatsal is present. Yes, sir. 39 Divisha. Is Divisha present? Hassan. Yes, sir. Hassan, any doubt? No, sir. Neil. Present, sir. Ruganshi is present. Then Abhay is also present. Okay. So roll number 8 is absent. Roll number 25 is absent and roll number 39 is absent, right? Right or wrong? Yes, आप sir. लोग जो अभी स्टैक और क्यू के लिए कर रहे हो, जो आपने जितनी सर्चेस पढ़ी है, ठीक है, सर्च एल्गोरिथम्स पढ़ी है ना हमने बहुत सारी. ध्यान है सर्च एल्गोरिथम का?
इंसर्शन, सिलेक्शन, बबल, ये सारी जो शॉर्ट्स पढ़ी थी ना हमने, हाँ सर। इन सबके भी डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। ठीक है, कोड तो देखो हम हैंड रिटन लिख रहे हैं, प्लस आपको साथ में सॉफ्ट कॉपी में इन सबके विद एग्जांपल रिपोर्ट भी प्रिपेयर करनी है। ठीक है, ठीक है ना? कोई डाउट है तो पूछो। सर कोड लिखना है नोट में? नोटबुक में तो लिखना ही है कोड, ये तो हमें शॉर्ट फाइल जो प्रिपेयर करनी है उसमें भी कोड आ जाएगा। ठीक है, कोड तो हमारे पास है ही, पर कोड फाइल में उसका बेसिक कंसेप्ट और उसका एक एग्जांपल भी लिखना है। ठीक है, ठीक है ओम? यस सर। ओके, तो ये काम पूरा करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम लोग क्या बस में जल्दी जाते थे, तब तुम्हारी बस छूटने वाली होती थी तो आधा घंटा 5 मिनट जल्दी छूटते थे ना, तुम छूटते थे ना एक दिन 5 मिनट जल्दी। अब तुम्हारा बस का टाइम बचने लग गया, अभी घर हो तो एक काम करो ये वाला यस सर। बस के टाइम में। ठीक है, ठीक है, यू कैन लीव। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप लोग जा सकते हो। ओके, और कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके। इफ देयर इज अ डाउट देन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव। एंड Diana, how much have you done? Are you there? Bye sir. So which homework? Bye sir. Okay, bye bye. Yeah, have you done anything, Diana? बाय सर। Bye bye. Yes, I modified the code. Okay, so are you able to get what the code is doing now, modified code? Yes, sir. So what should we do for the file? It's like you have to introduce the topic. Okay, define like what is a stack and what is queue. Okay, Yes, sir. then take a real life example of the same. Okay, Yes. and then Yes. you have to like write down the code along with the execution screenshots. Expansion. Okay, Okay, sir. that's all is Okay. required. So how do we submit? I'll ask for the submission. Don't worry about that. Just prepare a file. Okay. Okay, along Okay. with the searches which we have prepared earlier, no? Like the Okay, binary okay. sort, the insertion sort, or the searches and the sorts which we have done. Okay, sir. Prepare the record for the same also. So do Okay, we sir. have to do it for assignment 1 and after that the matrix addition and multiplication as well? No, for your searches and sorts, Okay, sir. along with the stack queue and linked list, we will discuss in the next lab. Okay, sir. Thank you, Okay. sir. Have a nice day. You too. Is there any doubt?